اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 25 فروری۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے خوبصورت کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ دن اور راتیں آتی ہیں گزرتی ہیں جیسے خاموش قافلے وقت کی ریت پر اپنے دھندلے مگر لازوال نقش چھوڑتے ہوئے چلتے جائیں۔ کوئی دن اپنے دامن میں شور چھپا کر جاتا ہے، کوئی رات اپنے پردوں میں کہانیاں سمیٹ کر، اور یوں لگتا ہے جیسے تاریخ کسی عظیم مصور کا کینوس ہو جس پر لمحے اپنی رنگتیں خود بھر رہے ہوں۔ ہر صبح کا سورج ایک نیا سوال لے کر طلوع ہوتا ہے اور ہر ڈھلتی شام کوئی پرانا جواب ہمارے قدموں میں رکھ کر چلی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دن گزر رہے ہیں مگر اصل میں وہ ہمیں لکھ رہے ہیں۔ راتیں صرف تاریکی نہیں لاتی، وہ ان لوگوں کی سانسیں اپنے اندر محفوظ کرتی جاتی ہیں جنہوں نے اس زمین پر اپنی چاہتیں، اپنی تکلیفیں اور اپنے خواب بوئے تھے۔ یوں وقت بہتا رہتا ہے، دن موتیوں کی طرح بکھرتے ہیں، راتیں ان موتیوں کو ایک لڑی میں پرو کر تاریخ کا ہار بنا دیتی ہیں جسے آنے والی نسلیں پہن کر سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کون تھے اور ہم نے اپنی ساعتوں کو کس تحریر میں بدل دیا۔ پروگرام پیش خدمت ہے آج تاریخ کے آئینے میں 25 فروری۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں اگر ہم اسے ذرا اعداد و شمار کے زاویے سے سمجھیں تو 25 فروری گریگورین کیلنڈر کا 56واں دن ہے، اور اس کے بعد سال مکمل ہونے میں 309 دن باقی بچتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ محض دن گننے کا ایک طریقہ ہے نا؟ جی، ایک ہندسائی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم ان ہندسوں کے پیچھے جائیں تو یہ تاریخ محض ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ارتقاء، مختلف تنازعات اور بڑی ایجادات کا ایک مسلسل دھارا ہے۔ صحیح۔ یہ دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کس طرح اچانک اور بسا اوقات بہت ہی خاموشی سے کروٹ لیتا ہے۔ اور اگر تاریخ کی ان بڑی کروٹوں کی بات ہو تو سب سے پہلے عالمی سیاست اور جو جغرافیائی زلزلے آئے ہیں ان پر نظر ڈالنا لازمی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر 1932 کی 25 فروری کی ہی بات لے لیں۔ ہٹلر کا واقعہ۔ جی، اس دن ایڈولف ہٹلر کو جرمن شہریت دی گئی۔ اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی کاغذی کارروائی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو عرصے سے وہ دراصل 7 سال تک بغیر کسی بھی ملک کی شہریت کے رہا تھا، یعنی مکمل اسٹیٹ لیس تھا۔ صحیح۔ اگر اسے اس دن یعنی 25 فروری کو سرکاری طور پر شہریت نہ ملتی تو وہ قانونی طور پر جرمنی کا صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی مہر نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑنے کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے اسی ایک دن میں پرانی طاقتوں کے ابھرنے اور پھر ان کے زوال کا پورا چکر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 1932 میں ہٹلر کا اقتدار کی طرف یہ جو قدم تھا جس نے ظاہر ہے دنیا کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیلا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمیں 1945 میں بھی ملتی ہے۔ اچھا، 1945 کی 25 فروری۔ جی، دوسری جنگ عظیم کے بالکل آخری مرحلے میں ترکی نے باقاعدہ طور پر جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ صحیح۔ یہ دراصل اس بات کا حتمی اشارہ تھا کہ اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے اور پرانی سلطنتیں ٹوٹ کر ایک نئے عالمی نظام کے لیے راستہ بنا رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف دوسری جنگ عظیم تک نہیں رکا، اس کے بعد جو سرد جنگ شروع ہوئی نا، اس میں بھی 25 فروری کا بہت گہرا کردار ہے۔ جی، سرد جنگ کا دور تو ویسے ہی بہت ہنگامہ خیز تھا۔ بالکل۔ 1948 میں چیکوسلوواکیہ کے اندر کمیونسٹ پارٹی نے باقاعدہ بغاوت کے ذریعے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور وہاں کی تیسری ریپبلک کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ یورپ کے اس حصے پر وہ جو آہنی پردہ جسے آئرن کرٹن کہا جاتا ہے وہ مکمل طور پر گر چکا تھا، اور وہ ملک پوری طرح سوویت یونین کے اثر میں چلا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اسی سوویت بلاک کے اندر کچھ ہی سالوں بعد ایک ایسا نظریاتی زلزلہ آیا جس کی واقعی کسی کو توقع نہیں تھی۔ 1956 کا واقعہ؟ جی بالکل،
25 फरवरी 1956 सोवियत रहनुमा निकिता ख्रुश्चेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के एक बंद कमरा इजलास में एक बहुत तवील और धमाके खेज खिताब किया, जिसका मौजू बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, उसे तारीख में शख्सियत परस्ती और उसके नताइज के नाम से जाना जाता है। सही। इस खिताब में ख्रुश्चेव ने अपने ही साबका और इंतहाई ताकतवर रहनुमा जोसेफ स्टालिन की पॉलिसियों और मजालिम की शदीद मजम्मत की। और वो भी उस वक्त जब स्टालिन की मौत को सिर्फ 3 साल गुजरे थे। बिल्कुल, सोवियत निज़ाम के अंदर से आने वाली ये तनकीद एक बहुत बड़ी नजरियाती दरार की निशानदेही थी। और इसी फौजी और नजरियाती कशमकश का एक और बहुत बड़ा पड़ाव हम 1991 में देखते हैं, जब वार्सा पैक्ट का खात्मा हुआ। जी, 25 फरवरी 1991 को बुडापेस्ट में वार्सा पैक्ट को बाकायदा खत्म कर दिया गया। अब सुनने वालों के लिए ये बताना जरूरी है कि ये सोवियत यूनियन और उसके मशरकी अत्तहादियों का फौजी मुआहदा था, जो नेटो के मुकाबले में बनाया गया था। बिल्कुल। इसका टूटना कोई मामूली बात नहीं थी, ये सर्द जंग के फौजी तनाज़े के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान था। और सरहदों के टूटने और बनने की ये कहानी फिर इस सदी में भी जारी रही। जी, 2008 में। हाँ, 25 फरवरी 2008 को कोसोवो ने सर्बिया से अलहदगी और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक छोटे खित्ते का फैसला नहीं था, बल्कि ये जदीद यूरोप के नक्शे की तश्कील नौ थी। तो मतलब 1932 से 2008 तक ये एक दिन बार बार जोग्राफियाई जल्जलों का गवाह बना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इक़्तिदार की इस रस्साकशी और सरहदों से अगर हम थोड़ा हटकर इंसानी तख्लीक और फन की तरफ रुख करें। हाँ, ये पहलू भी बहुत अहम है। तो यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। 25 फरवरी में एक बड़ा अजीब सा मुतजाद पहलू नजर आता है। वो कैसे? 1836 में इसी दिन सैमुअल कोल्ट को अपने मशहूर रिवॉल्वर के लिए अमेरिकी पेटेंट मिला। ओह, मतलब एक हथियार की इजाद? जी, और ये सिर्फ एक पिस्तौल नहीं था, बल्कि ये हथियारों की फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर तैयारी यानी मास प्रोडक्शन का आगाज था। इस इजाद ने जंगों के तरीके और मौत बांटने की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो एक तरफ इसी तारीख को एक मुहलिक मशीन को कानूनी शक्ल मिल रही है जो जान लेने के लिए बनाई गई है, और दूसरी तरफ इसी 25 फरवरी को कुदरत कुछ ऐसे लोगों को भी भेज रही है जिन्होंने इंसानी रूह को खूबसूरती और फन से रोशनास कराया। बिल्कुल मुतजाद चीजें। जी, 1841 में मशहूर फ्रांसीसी मुसव्विर पियर ऑगस्ट रेनोयर पैदा हुए। उनका शुमार इम्प्रेशनिज्म तहरीक के बानियों में होता है। क्या बात है। उनकी पेंटिंग्स में जो रोशनी और जिंदगी है वो कोल्ट के रिवॉल्वर की उस धाती सर्दमहरी के बिल्कुल बरक्स है। और बात सिर्फ मुसव्वरी तक महदूद नहीं है। 1873 में एनरिको कारूजो की पैदाइश हुई, जो ओपेरा के बहुत बड़े गुलकार थे। बिल्कुल, वो इटालवी अमेरिकी गुलकार जिनकी आवाज ने इब्तिदाई ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स के जरिए दुनिया का सफर किया और म्यूजिक को पहली बार आम घरों तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ा इनकलाब था। और जदीद म्यूजिक की बात करें तो जॉर्ज हैरिसन, जो मशहूर बैंड बीटल्स के लीड गिटारिस्ट थे, उनकी पैदाइश भी 1943 में 25 फरवरी को ही हुई। बीटल्स के बगैर तो जदीद पॉप कल्चर वाकई अधूरा है। जी, और पैदाइश के साथ साथ इसी दिन होने वाली कुछ अमवात भी बड़ा गहरा तारीखी पस मंजर रखती हैं। जैसे क्रिस्टोफर रेन का इंतकाल। बिल्कुल, 1723 में वो अजीम अंग्रेज मेमार जिन्होंने लंदन का सेंट पॉल कैथेड्रल डिजाइन किया, वो इमारत दूसरी जंग अजीम की बमबारी में भी सलामत रही और एक अलामत बन गई। मतलब एक तरफ इमारतें सदियां गुजार रही हैं और उनका खालिक उसी दिन दुनिया से रुखसत हो रहा है। और सहाफत के हवाले से देखें तो 1899 में पॉल राइटर का इंतकाल हुआ। राइटर्स एजेंसी वाले? जी हाँ, जिन्होंने कबूतरों से खबरें भेजने से शुरुआत की और फिर टेलीग्राफ का इस्तेमाल करके न्यूज एजेंसी की बुनियाद रखी। आज जो ग्लोबल न्यूज नेटवर्क हम देखते हैं वो इन्हीं का विजन था। और 1983 में टेनेसी विलियम्स का इंतकाल भी इसी दिन हुआ। वो मशहूर अमरीकी ड्रामा निगार जिन्होंने इंसानी रिश्तों की तल्ख हकीकतों को स्टेज पर अमर कर दिया। बिल्कुल, तो ये हकायक बताते हैं कि इंसान कैसी मुतज़ाद सलाहियतें रखता है, तबाही के आलात भी बनाता है और साथ ही कैनवस पर रंग भी बिखेरता है और खबरों के जरिए दुनिया को जोड़ता भी है। जी, अब इसी सफर में जरा आगे बढ़कर सड़कों पर मौजूद अवाम की ताकत और समाजी इंसाफ की बात करते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। 25 फरवरी उन लोगों की जीत का दिन भी है जो जालिमाना निजाम के सामने डट गए।
1870 में अमेरिका में हिराम रोड्स रिवील्स ने हल्फ उठाया और अमरीकी सेनेट में बैठने वाले पहले अफ्रीकन निजात अमरीकी बन गए। और इसकी सबसे खास बात उनकी निशिस्त थी। बिल्कुल, मिसिसिपी से उन्होंने जो निशिस्त संभाली वो खाना जंगी से पहले जेफरसन डेविस के पास थी, जो गुलामी के हामियों के सदर थे। ये तो तारीख का एक बहुत बड़ा तंज और इंसाफ की जबरदस्त जीत थी। जी, ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐवानों में बैठे लोग तब्दीलियां लाते हैं या सड़कों पर मौजूद अवाम की जिद्दोजहद इदारों के दरवाजे तोड़कर अपने नुमाइंदों को वहां तक पहुंचाती है। अवाम की जिद्दोजहद ही बुनियाद होती है। बिल्कुल, रिवील्स का सेनेट तक पहुंचना कोई रातों रात का मौजज़ा तो नहीं था। ये नस्ल दर नस्ल उन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा था जो बराबरी के लिए लड़ते रहे। और सड़कों पर अवाम की ताकत का जिक्र हो तो 1986 में फिलिपाइन का पीपल पावर रेवोल्यूशन कैसे बुलाया जा सकता है? उसने तो दुनिया को हैरान कर दिया था। जी, 25 फरवरी 1986 को अवाम के समुंदर ने 20 साल से मुसल्लत ताकतवर सदर मार्कोस को मुल्क से फरार होने पर मजबूर कर दिया। लाखों लोग दारुल हुकूमत में निकल आए और ये बिल्कुल पुरअमन था। वो तस्वीर आज भी जहन में ताज़ा हैं, जहां आम शहरी और नन्हे मुसल्लत टैंकों के सामने खड़ी हैं और फौजियों को फूल दे रही हैं। जी बिल्कुल। और फिर कोरिजो एकीनो का पहली खातून सदर के तौर पर हल्फ उठाना, बगैर गोली चलाए अवाम ने एक मजबूत आमरीत को खत्म कर दिया। इसीलिए आज भी फिलिपाइन में 25 फरवरी को अवामी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और अवामी हुकूक की बात हो तो 2005 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के बानी पीटर बेनिसन का इंतकाल भी 25 फरवरी को हुआ, जिन्होंने तालिब इल्मों की गिरफ्तारी की खबर पढ़कर मुहिम शुरू की थी, जो बाद में एक आलमी तंजीम बन गई। बिल्कुल, जिसने दुनिया भर में इंसानी हुकूक पर आवाज उठाई। ये सारे वाकयात बताते हैं कि ये दिन सिर्फ हुक्मरानों का नहीं, आम इंसान की मुजाहमत का भी है। बेशक। और अब जब हम इन तारीखी हवालों को देख ही रहे हैं तो अपने खित्ते, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी मालूमात पर नजर डालते हैं। जी, उर्दू विकिपीडिया पर इस हवाले से काफी तफसीली मालूमात मौजूद हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में 25 फरवरी कई निशेब व फराज लेकर आई है। मिसाल के तौर पर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात, ये बहुत अहम मोड़ था। जी, इस दिन पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, लेकिन सियासी जमातों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। इस एक इंतजामी फैसले ने बिरादरियों और मकामी असर और रसूख को सियासत में इतनी गहराई तक शामिल कर दिया कि उसके असरात आज तक महसूस होते हैं। ये हकीकत है कि सियासी हिकमत अमलियों के साथ रियासत ने कई अलमियों का भी सामना किया है। जैसे 2008 का वाकया। जी, 25 फरवरी 2008 को रावलपिंडी में एक बहुत अफसोसनाक खुदकुश हमला हुआ। वो वक्त ऐसा था जब मुल्क को दहशतगर्दी की लहर का सामना था, और ये उस भारी इंसानी कीमत की याद दहानी है जो मुआशरे ने अदा की। बिल्कुल। और सियासी और आईनी महाज पर 2009 की 25 फरवरी भी बड़ी हंगामा खेज रही। गवर्नर राज का नफाज। जी, इस दिन वफाकी हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया। सूबाई असेंबली का काम मुअत्तल करके कंट्रोल गवर्नर सलमान तासीर के सपुर्द कर दिया गया। इससे मुल्क एक शदीद आईनी बहरान के दहाने पर आ गया। और इसी दिन की एक और बड़ी पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जी बिल्कुल। इसी दिन अदालत ने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया था। एक तरफ गवर्नर राज और दूसरी तरफ नाअहली। ये वाकयात कानूनी और सियासी ढांचे के लिए कितना बड़ा इम्तिहान थे। देखें, ये तमाम वाकयात जिन्हें हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर देख रहे हैं, ये बताते हैं कि किस तरह कानून और ताकत की कशमकश मुस्तकबिल तय करती है। और अगर मुल्की तारीख की अहम शख्सियात के बिछड़ने की बात करें तो 2019 में पख्तून अदाकारा लुबना गलाली का इंतकाल हुआ, जिन्होंने सकाफत के लिए बहुत मुश्किल हालात में काम किया। जी, और फिर 2020 में नेमतुल्लाह खान साहब का इंतकाल भी इसी तारीख को हुआ। वो कराची के साबिक नाजिम थे और उनका दौर शहर के तरक्याती मंसूबों के हवाले से बहुत याद रखा जाता है। तो जब हम इन तमाम वाकयात को एक साथ रखते हैं, चाहे इंतखाबात हों, अदालतों के फैसले हों या शख्सियात का जाना, ये सब किसी भी मौशरे के इर्तकाई सफर की अक्कासी करते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सब धागों को समेटें तो साफ नजर आता है कि हमने सिर्फ एक तारीख यानी 25 फरवरी की परतें खोली हैं और पूरी इंसानियत का अक्स नजर आ गया है। बिल्कुल। जर्मनी में हिटलर की शहरियत से लेकर तुर्की के ऐलान जंग तक,
موٹاپاسک میں وارسا پیکٹ کے خاتمے سے لے کر ریوالور کی ایجاد اور رینویر کے رنگوں تک، اور پھر پاکستانی تاریخ کے آئینی امتحانات تک۔ یہ تفصیلی جائزہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ محض خشک معلومات نہیں، بلکہ وہ زندہ پس منظر ہے جس نے ہماری آج کی دنیا کو تشکیل دیا ہے۔ کیونکہ تاریخ تو کبھی رکتی نہیں ہے، یہ وہ مصنف ہے جو ہر لمحے اگلا باپ لکھ رہا ہے۔ یہ تھا آج 25 فروری تاریخ کے آئینے میں۔ تاریخ خاموش رہتی ہے مگر اس کی گونج کبھی مر نہیں سکتی۔ دن گزرتے جاتے ہیں مگر ان کے فیصلے صدیوں تک چلتے ہیں۔ تاریخ وہ آئینہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بس دیکھنے والا آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کچھ واقعات وقت بدلتے ہیں، کچھ واقعات وقت کو جنم دیتے ہیں۔ ایک لمحہ کبھی کبھی صدیوں پر بھاری پڑ جاتا ہے اور یہی لمحہ تاریخ کہلاتا ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔